Good morning, children. So we are going to see the uh, next thing, that is objectives of business. Okay. So this is the second part of your first lesson. So we have seen that business has originated from the word busy, and now we want to see what are the objectives of business. One is economical objective. Objective यानी कि aim, motive, ये सब सेम है. क्यों किया जाता है बिजनेस? तो इकोनॉमिकल, उसका जो एम है वो क्या है? प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. दीज आर द मेन टू इकोनॉमिकल objectives or aim. One is to earn profit. We have already seen when do we earn profit. When we make something and sell it for more than the costing price, then we get profit. Right? And maximization of wealth is that in the long run. See, profit is a short term. कि ये महीने में इतना profit हुआ, इस साल में इतना profit हुआ. So that is a short term thing. But maximization of wealth occurs slowly. And maximization of wealth is about the owner of the business. So owner of the business will increase in his wealth in long run. After many years, 5 years, 10 years, his wealth will be increased because he is earning profit monthly, yearly. So profit is a short term terminology and wealth is a long term terminology. Other economical objectives are like expansion, modern technology, that is economical benefit, because modern technology, when you are buying, you get, it is like an asset, you know. So that is all economic benefit. Because you are getting profit, because your wealth is increasing, you can also have expansion and modern technology. So it is considered economical benefit. It is occurring due to money. Social benefit is what? Because see, nobody can do business out of the society. You are brought up in the society, you went to the schools that are in the society, you are using the roads of the society. You cannot go to Himalayas and do business, right? Yeah. So you have to do business in the society. So you have to pay that debt of the society. You are in debt of society. Society provided you all the facilities. So you are in debt of the society, and when your business will grow, you have to pay back to the society, and those are your social objectives. One is your social responsibility towards the society. Okay, so you should kind of do something for the poor. That is your social responsibility. Then when you are growing your business, to provide employment opportunity is your social responsibility. To provide good quality of goods and services to the customers, that is again your social responsibility. To have fair trade practice, that means not to do black marketing, all those things that you have seen in 10th standard. Not to do hoarding, मतलब सामान छुपा के रखना और सिर्फ जब भाव बढ़ेगा तब बेचना, ये सब नहीं करना है, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना है. ओके. अदर social objectives are research, economic development of nation और employee welfare. ये सब चीज़ों पे ध्यान देना. These are all social objectives of a business. Sorry. So now economic objectives we have seen already. Maximization of wealth we have discussed. So other economic objectives we saw expansion and modern technology. So now we want to see social responsibility also we have discussed. Okay. So in other objectives of social responsibility we have seen it is about cooperating with government, helping in economic development of the nation, giving welfare schemes to employees, and having your special identity in the society. Now we are going to look at the business risks. There are many risks. This also we have talked about, but let us look at it into detail. So there are many risks involved when you are doing business. So one is natural risk and another is your man-made risk. So we already seen the natural risk means tsunami and all those things, and man-made risk means theft, fire,
So this we have discussed already. So theft, strikes of employees, change in technology, demand of customer, their test may change, political instability, है ना? So if political instability means all the time new parties coming to rule, what will happen? Then policies may change, and as a result you may have difficulty. And risk of competition is always there. Somebody, a good competitor may come there, so you will have the risk of succeeding over him. So what are the reasons? So these are the types of risk we understood: natural risk, man-made risk. So due to what these risks come into existence, the causes are new technology. Whenever there is change in technology, like we said, if I'm doing business of typewriter some many years back, and when the computers would come, I would have the risk and I would have to close down. So that is the change of technology. Key risk: whenever new technology and high quality goods are produced, the new machinery will have to be installed in the place of old machinery. Threat of substitute products: when customers may turn to a substitute product. Means suppose I am making Colgate paste, but a good Pepsodent paste maker has come. So people may like that Pepsodent paste and my Colgate may not work. This is one example. So there are many brands. So one brand may be better than the other. So when two things are similar, they are called substitute. One can be used in place of others. Like fountain pen, you have so many names, right? Even pests, we have so many names. So in same way, they have given one another example: vessel of steel in place of copper and brass, television in place of radio. These are also in a way substitute, but exactly substitute is like same thing but many different brands. So that is the threat of substitute products. When a good brand will come, others will have difficulty. So competition increases and business risk directly affect the business. So sale price of the product is to be reduced. In that case, if you have a very good competition from a substitute product, what you will have to do? You need to reduce your price to attract the customer, and you have to advertise more. So these expenses make your profit में थोड़ा सा कटौती लाएंगे. तो this you have to do to maintain the position in the market and face the competition. Thus the profit also gets reduced. So this is the risk. So this risk sometimes you have to suffer. Again, new, like I said, if there is instability, new legislation may come. तो legislation means law. नए नए लॉ आ सकते हैं पॉल्यूशन के बारे में, कस्टमर, वर्कर्स, इंडस्ट्री के जो जैसे कंपनी लॉ होता है वैसे अलग अलग लॉज होते हैं. तो अकॉर्डिंगली इफ यू ऑलरेडी नॉट टेकन केयर, यू विल हैव टू टेक केयर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, you will be punished. The minimum wages act, if you are not paying minimum wages, उससे भी अगर कम तुम दे रहे हो तो भी तुमको पनिशमेंट हो सकती है. फैक्ट्री एक्ट है, ये सबको तुमको फॉलो करना पड़ेगा. सो इफ़ यू डोंट फॉलो देयर विल बी रिस्क. अनसर्टेनिटी इन डिमांड तो रहेगा. राइट नाउ देयर इज़ नो डिमांड ना ऑफ कॉस्टली प्रोडक्ट्स, लग्जरियस प्रोडक्ट्स. सो ये अनसर्टेनिटी रहती है बिकॉज ऑफ चेंज इन कस्टमर्स चॉइस, taste, income. Right now it is due to income because nobody is earning very well right now. Product price, inflation, इस तरीके से uncertainty on demand always affects the profit. Physical risk तो रहता है डैमेज का, कभी आग लग गई है ना, कभी क्या हो गया. In transit, when you are taking your goods from one place to other, there might be accident, some damage, some fire. So these are all the physical risks. Sometimes your machinery may not work properly, non-functioning of machinery and equipments. तो ये physical risk में आ जाता है. So we have seen the risks involved in the business. Now we want to see what is a profession. देखो, एक कोई इंसान जब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल लेता है और ट्रेनिंग लेके then he gives his services and charges fees, then it is called profession. जैसे लॉयर, डॉक्टर है ना, ये सबको प्रोफेशंस बोले जाते हैं. तो उनको
नौकरी भी वो कहीं कर सकते, लेकिन वो उसको नौकरी करने की हर बार ज़रूरत नहीं, वो खुद भी अपना काम अकेले भी कर सकते, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं. A person with specialized knowledge, training and professional education renders means gives service in return of fees. That is called as profession. इसमें मैंने डॉक्टर लॉयर का एग्जांपल दिया, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक मेन एग्जांपल है. सो दीज आर ऑल प्रोफेशनल पीपल. ठीक है. सो डॉक्टर कैन have a job in hospital and take salary, but at that time it is called employment. But when he is doing his own practice, that is called profession. A profession has two characteristics देखेंगे. They have to obtain specialized knowledge. सबसे बड़ी characteristic है specialized knowledge. दूसरी है कि they get fees for that knowledge. तीसरी है कि they give service, है ना. और चौथी है कि they can independently earn. पांचवी है कि it has no relation with production. और क्या है, they have to follow the code of conduct of the professional association. They have to be the members of that professional association. They have to follow the code of conduct. And monetary returns sometimes may be uncertain in profession also, just like business. Okay. So that is your profession. main चीज़ क्या जानी, specialized knowledge. Lawyers, doctors, CA. ठीक है. चलो अभी employment देखेंगे. Employment we all know कि employment means job. It is an economic activity performed in return for a fixed salary. देखो प्रोफेशन था तो फी, बिजनेस था तो प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट है तो सैलरी. तो सैलरी मिलती है हर महीने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर and it is decided how much salary will be paid, and each month he is going to get that salary, but he has to go on time at the workplace. तो ये पूरा टाइम जितना डिसाइड हुआ है 5 to 9 वो कंपनी का टाइम है. उस टाइम पे उसको कंपनी को देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो कैरेक्टरिस्टिक में मेन इज फिक्स सैलरी. ओके. with some other benefits. Some company में give medical allowance, pension, just like government में पहले हुआ करती थी pension. Now pension is also not there. To perform the assigned work as per contract. Contract word use करना ही है. Qualification is necessary as per the job. Working hours are fixed. वो working hours देने पड़ेंगे. Retirement and उसके benefits ये predetermined होते हैं contract में. Employment is dependent. Business is independent, profession is independent, but employment is dependent. जब तक employer है तब तक ही तुमको काम मिलेगा. employer अगर उसका business बंद कर देगा तो तुमको काम नहीं मिलेगा. तो employment is a dependent activity. Employer and employer bound to follow rules as per the contract. Contract is very important here. But employer doesn't have to make any capital investment, right? सॉरी, एम्प्लॉय डजंट हैव टू. जो नौकरी करने वाले उसको नहीं करना. नौकरी करने वाले यानी एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर यानी जो भी स्कूल हो तो वो क्या हो गया, एक तरह का बिजनेस ही हो गया. तो वो जो जिसका बिजनेस है वो तो कैपिटल लगाएगा, लेकिन जो जॉब कर रहा है उसको कोई कैपिटल लगाना नहीं है. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द वर्कर और द एम्प्लॉय. अभी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे. बिजनेस के देखो, नेचर ऑफ गुड्स कैसे हैं. नेचर ऑफ गुड्स में हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज है. नेचर ऑफ वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो तो हमने देखा था बिजनेस में. इसमें क्या है, प्रोफेशन में पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड विद डिस्क्रिशन, स्पेशलाइजेशन के साथ, इन रिटर्न ऑफ फीस. परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयमेंट में अभी हमने देखा. नेचर ऑफ वर्क में यू हैव टू परफॉर्म द वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. एंड एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखनी पड़ी, इन रिटर्न ऑफ सैलरी. यहाँ पे लिखा है इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट मनी, यहाँ पे इन रिटर्न ऑफ फी एंड इन रिटर्न ऑफ सैलरी. क्वालिफिकेशन, बिजनेस तो कोई भी चालू कर सकता है, ऐसे कोई रूल नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन हो तो ही तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो. तो नो क्वालिफिकेशन इज नीडेड. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज, ये तो मेनली प्रोफेशन में तो एक्सपर्टाइज नॉलेज की ही बात है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द जॉब. रिवॉर्ड में प्रॉफिट फॉर बिजनेस, फी फॉर प्रोफेशन एंड वेजेस और सैलरी फॉर एम्प्लॉयमेंट.
कैपिटल में बिजनेसमैन रिक्वायर्स कैपिटल एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो even a professional will require some capital to start his service, but employment में the employee doesn't have to have any capital. Risk, uncertainty is there, risk of non receipt of fees is there, सर्विस तो ले लेंगे और बाद में कभी फी नहीं देंगे, ये रिस्क रहती है. यहाँ पे लेस रिस्क है, जनरली मंथली सैलरी मिल जाएगी. अभी कोरोना के टाइम में थोड़ी रिस्क आ गई यहाँ पे. कोड ऑफ कंडक्ट, लीगल प्रोविजन आर टू बी फॉलोड. यहाँ पे बिजनेस में ऑल लॉज यू नीड टू फॉलो. यहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन यू हैव टू फॉलो. यहाँ पे क्या फॉलो करने, रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. ओनरशिप का ट्रांसफ़र क्या है, ओनरशिप एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस दूसरे को बेच सकता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ पॉसिबल. यहाँ पे प्रोफेशन में ट्रांसफ़र नहीं है, तुमको तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम ही कर पाओगे, वो तुम डिग्री किसी और को बेच नहीं सकते. और यहाँ पे तो कोई ओनरशिप का कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, देयर इज़ नो टाइटल ऑफ ओनरशिप, तो बेचने का सवाल ही नहीं है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को ये तीन में क्लासीफाई किया जाता है. एक होता है ट्रेड, एक होता है कॉमर्स और एक होता है इंडस्ट्री. तो ट्रेड का मीनिंग है कि व्हेन यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग बट यू आर एक्सचेंजिंग कमोडिटी एंड सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस और मनी. तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि मनी नहीं था, तो राइस के बदले गेहूँ ले लिया. इस तरीके से ट्रेड एंड कमोडिटी ऑफ गुड्स का एक्सचेंज विद कमोडिटी ऑफ गुड्स ही होता था. अभी क्या है, कमोडिटी एंड सर्विस कैन बी एक्सचेंज फॉर द मनी विद द एम ऑफ प्रॉफिट. तो मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन्स इज नोन एज ट्रेड. ठीक है. व्हेन यू परचेस अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, तो ट्रेडिंग हो गया कि तुमने पैसा दिया और शॉपकीपर ने तुमको बुक दिया, तो ये है ट्रेडिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी. कभी हर बार गुड्स होना ज़रूरी नहीं, सर्विस भी हो सकता है. व्हेन यू परचेस अ बस टिकट एंड यू यूज दैट सर्विस, यू ट्रैवल बाय बस, देन इट इज़ एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी. तो ये दोनों को ही ट्रेड बोला जाता है. ट्रेड में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं. ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें दो लोग होने बहुत ज़रूरी है, एक तो परचेसर और एक सेलर. इट इज़ इसेंशियल इन एक्सचेंज, इज इसेंशियल इन ट्रेड. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन. पहले बुक कीपर शॉपकीपर का था, फिर तुम्हारा हो गया. और सर्विसेज में क्या है, ट्रांसफ़र होता है, उसमें ओनरशिप का नहीं. गुड्स में तो ओनरशिप का ही ट्रांसफ़र होता है. इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इधर द अमाउंट इज पेड और गुड्स से एक्सचेंज, दोनों तरीके से पॉसिबल है. दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एक्टिविटी, नॉट वन टाइम. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी लीगल है. ठीक है. अभी ट्रेड के दो टाइप्स है, ये लेसन बहुत ईजी है, फटाफट कर लेंगे. इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. देखो, विद इन द कंट्री जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ कंट्री जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल. तो इंटरनल ट्रेड है अमंग डिफरेंट रीजन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. अ ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद परचेसेस एप्पल फ्रॉम कश्मीर, और ट्रेडर ऑफ नागपुर सेंड्स ऑरेंजेस टू राजकोट. ये सब इंटरनल ट्रेड हो गया विद इन द कंट्री, विद इन इंडिया, कोई भी एक कंट्री के अंदर. उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो रिटेल और दूसरा क्या है, होलसेल. होलसेल मतलब इफ़ आई एम अ होलसेलर, मैं बहुत ज़्यादा सामान एक साथ खरीदूंगी और वो सामान होलसेलर विल गिव टू द रिटेलर. रिटेलर मतलब सिंगल शॉप वाले जो डायरेक्टली कस्टमर को देने वाले. होलसेलर ज़्यादातर दूसरे बिजनेसमैन को यानी कि रिटेलर को बेचते हैं. और होलसेलर परचेसेस गुड्स इन बल्क, बहुत ज़्यादा एक साथ लेंगे डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास से, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, रिटेलर्स को, शॉप वालों को. द होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो. होलसेलर इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर एंड रिटेलर यानी कि जो कस्टमर को डायरेक्टली बेचता है. इन रिटेल ट्रेड द रिटेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सप्लाइज टू द कंज्यूमर या कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट. वो बेचता कितना है, एक एक दो दो छोटे छोटे कम नंबर्स में, और होलसेलर बल्क क्वांटिटी में खरीदता भी है और बल्क क्वांटिटी में बेचता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज बिटवीन टू कंट्रीज अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. जापानीज कंपनी सेलिंग टू इंडियन ट्रेडर्स, तो इंटरनेशनल हो गया.
इंडिया में से केसर मैंगो यूएस से चला गया तो इंटरनेशनल हो गया। उसमें दो तरह का है, मेनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि इंपोर्ट मतलब मुझे बाहर से आउटसाइड कंट्री से कुछ मैं मंगाती हूँ, है ना, तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। दैट मीन्स आई एम इम्पोर्टिंग चॉकलेट्स फ्रॉम यूएस, तो वो इम्पोर्ट हो गया। बट आई एम एक्सपोर्टिंग माई सम ज्वेलरी टू द कस्टमर्स इन यूएसए, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट में हम कस्टमर है, आउटसाइड कंट्री में से माल आया है। एक्सपोर्ट में हम बेच रहे और आउटसाइड कंट्री में हमारा कस्टमर है, और ये री एक्सपोर्ट ट्रेड भी होता है। तो जैसे इन्होंने री एक्सपोर्ट में शॉर्ट में समझा देती हूँ। सपोज हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की और यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो ही इज़ लाइक होलसेलर एंड ही इज़ बाइंग इन बल्क एंड अगेन ही इज़ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, तो वो हो गया री एक्सपोर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट कॉमर्स। कॉमर्स जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए जितने भी हेल्पफुल ऑक्सिलरी सर्विसेज है उनको बोला जाता है कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। जिस सर्विसेज में क्या क्या आएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, एजेंट्स, ये सब के बिना ट्रेडिंग और बिजनेस तुम्हारा चलता नहीं है। इसके लिए इनकी बहुत ज़रूरी है, इसको हम टर्शरी भी बोलते हैं। तो ये सब हेल्पफुल सर्विसेज है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन की सिवा कौन सा बिजनेस हो सकता है। कम्युनिकेशन है, तो कोई सर्विस भी कम्युनिकेशन के बिना चलती नहीं है। स्टोर करना पड़ता है माल सामान को। तुम्हारे एजेंट बहुत सारे होते हैं क्योंकि तुमको कई जगह पे बेचना होता है, तो ये सब हेल्पफुल होता है। दोज आर कॉल्ड कॉमर्स। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स देखेंगे। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर ही ट्रेड आ जाता है। कॉमर्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स, जैसे हमने बोला ना वेयर हाउस, तो टाइम यूटिलिटी, यू रिमेंबर ना, व्हेन वी आर स्टोरिंग समथिंग। प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट हो गया मतलब प्लेस यूटिलिटी। तो टाइम और यूटिलिटी, ये दो यूटिलिटी इंक्रीज करने वाले सब चीज़ें कॉमर्स में आती है। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड बट कंटिन्यूस, जैसे बैंकिंग है, तो जब तुमको ज़रूरत होगी तुम जाके पैसा निकालोगे। इंश्योरेंस, ये सब चीज़। Auxiliary services are available at reasonable prices and can be supplied to customer at fair price. इस तरह कॉमर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। और आजकल तो नया क्या आ गया, ई कॉमर्स, है ना। इट इज़ ऑल ऑन द इंटरनेट की मदद से हो सकता है, उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये ट्रेडिंग ऑनलाइन चलता है, वो ऑल दोस थिंग्स। ई बैंकिंग भी हो गया ना अभी। ओके, सभी डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे। ट्रेड दो लोगों के बीच में होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। स्कोप इज लिमिटेड, बोथ पार्टीज ऑफ ट्रेड मोस्टली नो ईच अदर। ये जैसे एक छोटी जगह में एक जगह पे हो रहा है, दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए इसका स्कोप भी कम है। और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी तो होता है। कॉमर्स में ट्रेड तो है ही, साथ साथ ऑक्सिलरी सर्विस भी है। तो ये कॉमर्स में ट्रेड ऑलरेडी है, तो कॉमर्स एक वास्ट आइडिया है, ये एक छोटा है। और दिस हैज़ ह्यूज स्कोप, इसीलिए द स्कोप इज़ वाइडर बिकॉज ट्रेड इज़ इंक्लूडेड इन कॉमर्स। इसमें बोथ पार्टीज में भी एट डिस्टेंस, अभी हमने बात की ई कॉमर्स का देखो, ई प्लेटफॉर्म्स का देखो, ई बैंकिंग का देखो, तो दे मे नॉट बी फेस टू फेस, दे मे बी अननोन टू ईच अदर, इवन दे कैन ऑब्टेन द ऑक्सिलरी सर्विसेज। ये होता है कॉमर्स में। तो अभी देखेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में जो बदलते हैं उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। मतलब कौन सी यूटिलिटी, यू रिमेंबर फॉर्म, FORM, फॉर्म यूटिलिटी।
कॉमर्स में टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी की बात हुई, और इंडस्ट्री में क्या है, फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मतलब कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बाय एडिंग द यूटिलिटी ऑफ फॉर्म to satisfy the human need is called industry. Definition you need to learn. जैसे from wood you are making furniture, from cloth raw cotton you are making cloth, है ना, ये होता है industry. Production, economic activity, change in form, ये form is the main word. तो ये सब with use of human labor and natural resources and machine, ये सब होते हैं characteristics of industry. अभी क्लासिफिकेशन में है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी में कैसे हम बोलेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री तो यू ऑल नो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. अभी ये व्हीट, फ्लोर, रोटी हम अभी समझते हैं कैसे ये इसमें जाता है. तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर है मेनली, ठीक है. तो लैंड, एयर, सी से जो कनेक्टेड है, जो नेचुरल है. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो नेचुरली होता है, जैसे हम कोई उगाते हैं, हम व्हीट अगर उगाते हैं तो अर्थ के बिना नहीं उगा सकते. तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फार्मिंग, दे ऑल कनेक्टेड टू लैंड. फिशरीज कनेक्टेड टू सी. तो नेचुरल एलिमेंट से जो कनेक्टेड है तुम्हारा प्रोडक्शन, तो वो होता है प्राइमरी. जैसे एग्रीकल्चर, उसमें तुमने व्हीट उगा लिया. अभी सेकेंडरी, यहाँ पे जो उगता है ना वो डायरेक्टली कस्टमर कैन नॉट यूज. व्हीट को क्या करेंगे, खा नहीं सकते ना. तो अभी सेकेंडरी पे वो डिपेंडेंट करता है. Various types of machines and technology are used and the natural wealth is processed. यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है to make consumable या usable. जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया, व्हीट का पहले फ्लोर बना दिया. तो ये फ्लोर बनाने की अगर तुम्हारी इंडस्ट्री है तो यू आर नाउ मेकिंग इट यूजेबल. फिर आप घर पे जाके रोटी बना के खा सकते हो. तो ये यूजेबल हो गया. तो इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सब आ जाता है. Now let us see what is tertiary industry. Tertiary is mainly service. रोटी तो तुम घर पे बना के तो खा ही सकते हो, लेकिन रोटी की सर्विस देने वाले बाहर होटल भी तुमको मिलते हैं. तो ये tertiary service has a very wide scope. It provides help and services to the primary and secondary. ठीक है. तो इंडस्ट्री जो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनको हेल्प करने वाले टर्शियरी, मतलब अगेन इसमें भी बैंकिंग वगैरह सब आ जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इसको भी टर्शियरी बोला जाता है. Products obtained from primary industry and secondary industry are made more consumable for the customers with different processes. जैसे डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री. तो जैसे तुमने फ्लोर तो बना दिया, लेकिन फिर बेकरी वालों ने बिस्किट्स वगैरह बना दिए उस तरीके से. तो जैसे व्हीट है तो वो क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री. फ्लोर है तो वो क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंडरी इंडस्ट्री. और रोटी है तो वो क्या हो गया, टर्शियरी इंडस्ट्री, जैसे तुम्हारे होटल्स हो गए. तो इस तरीके से टर्शियरी इंडस्ट्री इंक्लूड सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, कम्युनिकेशन. ये सब टर्शियरी के अंदर आ जाते हैं. एक तो हमने वो एग्जांपल लिया, लेकिन ये भी जो हेल्पफुल चीज़ें हैं टू ट्रेड एंड बिजनेस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ टर्शियरी. तो एक एंड में उन्होंने भी बोला है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज सेकेंडरी, एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड और रोटी फ्रॉम और बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर इज नोन एज टर्शियरी. जो कि ज़्यादा ही तुमको और एक स्टेज आगे का करके देता है, वो टर्शियरी होता है. तो इस तरीके से वी हैव फिनिश दिस लेसन. गो थ्रू इट, रीड इट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग you can always ask me in the Zoom lecture. Okay, thank you. We'll stop here.